every last Sunday of the month, महीने के हर आखिरी रविवार को we take some time to meditate on the fact that our God is a supernatural God. हम कुछ समय लेकर इस बात पर मनन करना चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है अलौकिक परमेश्वर है। You know, we are all human beings. हम सब मनुष्य हैं। We live natural, physical lives. हम जो यहाँ पर जो प्राकृतिक रूप से स्वाभाविक रूप से जीते हैं, But our God is supernatural. लेकिन हमारा परमेश्वर अलौकिक परमेश्वर है। He does things above the natural. वो जो है प्रकृति से बढ़कर बड़े कार्य करते हैं। And that's why we call it supernatural, something that is above the natural. इसीलिए हम अलौकिक कहते हैं, जो है प्रकृति से बढ़कर है। And we as human beings, we live physical, natural lives. हम मनुष्य होने के नाते जो है प्राकृतिक और स्वाभाविक जीवन जीते हैं, But scripture tells us that we are also spiritual beings, लेकिन वचन हमें ये बताता है कि हम जो है आत्मिक लोग हैं। right? Because we see in Bible, we see in scripture that we relate to God in prayer. तो हम वचन में देखते हैं कि हम जो है परमेश्वर के साथ प्रार्थना में रिश्ता बनाते हैं। The Holy Spirit indwells us. पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। And these are spiritual things. ये जो है आत्मिक चीजें हैं। So we live both in the natural, physical, and the spiritual realm. तो हम जो है स्वाभाविक और शारीरिक और जो है आत्मिक क्षेत्र दोनों में हम जी रहे हैं। So while we live such lives as believers, जबकि हम ऐसे विश्वासी होने के नाते ऐसे तरह का जीवन जी रहे हैं, the Bible says that there is this spiritual realm that we should be aware of. बाइबल हमें इस बात को बताती है कि एक ऐसा आत्मिक क्षेत्र है जिसके बारे में हमें जानने की या जागरूक रहने की जरूरत है। Especially in the spiritual realm where there are spirit beings or demonic beings. खास कर जहाँ ये अलौकिक चीजों में जो है आत्मिक चीजों में जो वहाँ पे शैतान है और दुष्ट आत्माएं हैं। And we see that angels are also there, angelic beings. हम देखते हैं कि वहाँ स्वर्गदूत भी है। But we know that what the demonic beings do in the spiritual realm, they affect us in the natural. हमें इस बात को जानने की जरूरत है, जो दुष्ट आत्माएं जो अलौकिक चीजों में करती हैं, वो जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। Right? And so we cannot pretend that nothing will happen to us. हमें इस बात से ऐसा नहीं दिखाना चाहिए, तो दर्शाना चाहिए कि वो कुछ भी हमें हानि नहीं पहुंचाएगी। Right? We cannot pretend that, oh, there are no powers of darkness, there is no Satan. We cannot pretend like that. हमें ऐसा नहीं दिखावा करना चाहिए कि कोई शैतान नहीं है या तो दुष्ट आत्माएं नहीं है। Right? Especially, we see instructions in scripture that we should be aware of these things. खास करके जो हमको वचन में जो निर्देश दिया गया कि इन बातों को जानने के लिए, जागरूक रहने के लिए। For example, if you look at Ephesians 6 and verse 12, उदाहरण के लिए इफिसियों के 6 अध्याय के 12 वचन, it says, we do not wrestle against flesh and blood. ये वचन ऐसा बता रहा है कि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं। Right? So we're not fighting against human beings. हम जो लोगों के साथ नहीं लड़ रहे हैं, But it says, but we wrestle against principalities, powers, rulers of the darkness of this age, and against spiritual hosts of wickedness. लेकिन यहाँ वचन बता रहा है कि प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्ट आत्मा की आत्मिक सेनाओं से हमारी लड़ाई है। Right? So who is this who's fighting against these powers of darkness? ये कौन है जो अंधकार के शक्तियों से लड़ रहे हैं? It's you and I, आप और मैं, believers in the Lord Jesus. प्रभु यीशु में विश्वासी। Right? This is a reality. ये वास्तविकता है। And so Paul wanted to write to the believers. इसलिए पौलुस जो है विश्वासियों को लिखना चाह रहा था। And he's saying, hey, we wrestle against these things. तो वो बता रहे हैं कि हम जो है इसके साथ लड़ रहे हैं। And in another place in 2 Corinthians, Paul writes to them and he says, hey, we are not ignorant of their methods. तो यहाँ पौलुस जो है दूसरा कुरिन्थियों के 2 अध्याय के 11 वचन में बता रहा है कि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। So Paul is saying, these demonic beings, they have certain methods, they have certain ways of fighting with us. तो यहाँ पौलुस बता रहे हैं कि दुष्ट आत्माओं को जो है करने की एक तरीके होते हैं, उनके जो चाल चलन होते हैं, वो हमसे लड़ने के लिए एक तरीका रखे हैं। And so we should be aware of those methods. उनकी उन युक्तियों को हमें जानने की, जागरूक रहने की जरूरत है। Like for example, if we are not aware of their methods, उदाहरण के लिए उनके तरीके हमें नहीं पता हो तो we'll think, oh, I don't have to do anything. तो हमें ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। But if we are aware, यदि हम जानते हो, if we know, hey, this is not of God, अगर ये हम सोचेंगे कि ये बात ही समस्या है,
This is not God doing this in ये my life. परमेश्वर नहीं कर रहे हैं हमारे जीवन में, This is Satan bringing this in my life. ये शैतान मेरे जीवन में कर रहा है, And therefore I can do something. इसलिए मैं कुछ करूंगा. If we don't know our enemy, यदि हम अपने शत्रु को नहीं जानते हैं, if we don't know the enemy's ways, उसके तरीकों को नहीं जानते हैं, we'll think, oh, maybe it is God teaching me something. तो तब हमें ऐसा लगा कि परमेश्वर हमें कुछ सिखा रहा है. But if we know the enemy, लेकिन जब हम शत्रु को जानते हैं and if we know what are the ways the enemy uses to come against us, और इस बात को भी जानते हैं कि शत्रु हमारा विरोध में आने के लिए किन किन तरीकों को अपनाएगा, then we'll be ready. तब जो है हम तैयार रहेंगे, We'll be alert. हम बहुत ही सचेत रहेंगे. And we'll say, okay, now this I have to fight. तो तब हम कहेंगे कि हाँ, इसके विरुद्ध में मुझे लड़ना है. Okay? So, having said that, not every problem that we have is because of demons. इसको कहते हुए ये है कि जो कुछ भी समस्या का हम सामना करते हैं, ये सभी शैतान के द्वारा ही नहीं है. Yes or no? हाँ या नहीं? Right? Not every problem is because of demonic activity. हर एक समस्या जो है शैतान के गतिविधियों के कारण ही नहीं है. Suppose you eat some food which is bad, which is rotten, ऐसा ले लीजिए, खराब हुई वाली भोजन को आप खा लिए, and next day you have a stomach upset. उसके बाद कल आपके पेट खराब हो गई. You can't say, hey, this is because of this demon of stomach upset. तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये जो है जो पेट खराब करने वाले की शैतान के कारण मेरा पेट खराब हो गया है. We made a mistake. हमने गलती की है. So, bad things happen when we make certain mistakes, ऐसे बुरी चीजें जो है कुछ हम गलत चुनाव कर लेते हैं तब भी होती है. right? And bad things sometimes happen because other people make mistakes. कभी बुरी चीजें तब भी होती है जो दूसरे लोग जो है गलती कर देते हैं. No, you were going carefully. आप बहुत सावधानी पूर्वक जा रहे You हैं, were driving slowly, आप बहुत धीरे से चला रहे हैं, but the other person made a mistake. लेकिन दूसरे ने गलती की. Instead of staying on that side of the road, they came on this side of the road. सड़क के इस तरफ रहने के बजाय वो इस तरफ आ गए. They made a mistake, उन्होंने गलती की, and it affected you. वो आपको प्रभाव डाली, आप पर असर की. Right? So we cannot say, hey, the demon only did it. तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि शैतान ने ऐसा किया. Right? And sometimes bad things happen because we live in a fallen world. कभी कभी बुरी चीजें इसलिए होती है क्योंकि हम जो है पतन या गिरी हुई Right. संसार में जी रहे हैं. So when we use certain machines or gadgets, there is wear and tear. It becomes weak after some time. It does not work after some time. तो मशीनों के बारे में हम देखते हैं कि हमारा इस्तेमाल करते करते कुछ दिन बाद जो है खराब हो जाती है पुराने होने के कारण. And then also our bodies, they grow weak, and the Bible says the whole creation itself is in a bondage of corruption. हमारा शरीर भी इसी प्रकार से कमजोर पड़ती है. बाइबल बता रही है कि पूरा सृष्टि जो है इसके कारण कराह रही है. So we should not say everything is because of the demons, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हर एक बात जो है शैतान के ओर से ही है. but we do know that demons create problems. लेकिन हम ये बात जानते हैं कि शैतान जो है समस्याओं को लाते हैं. Okay, yes or no? हाँ या नहीं? Yeah, the Bible very clearly says बाइबल बहुत ही स्पष्ट तरीके से इसको बताती है that the Lord Jesus himself, he taught us, and he says the enemy comes to steal, kill and destroy. यीशु मसीह खुद बताएं कि शत्रु जो है चोरी करने, हत्या करने और नाश करने आता है. He does not come to bless us. शैतान जो है हमें आशीष देने के लिए नहीं आता है. The enemy does not come to encourage us. शत्रु जो है हमें जो है प्रोत्साहन देने के लिए नहीं आता है. He does not come to be our friend. वो हमारा मित्र होने के लिए नहीं आता है. He comes with one agenda, उसके पास एक ही कार्य सूची रहती है, to steal. चोरी करना. Steal what you have. आपके पास जो है उसे चुराना. We might have the plans and purposes of God in our heart. शायद हमारे पास परमेश्वर की योजना और उद्देश्य हमारे हृदय में है. We might have the joy of the Lord, the peace of God in our lives. हमारे जीवन में परमेश्वर की शांति और परमेश्वर के आनंद हमारे जीवन में है. He comes to steal that. वो उसे चुराने आता है. He comes to kill and destroy. वो हत्या करने और नाश करने आता है. In our families, हमारे परिवारों में good relationships, अच्छे रिश्तों, good understanding, अच्छा समझ, enemy comes to kill that, वो आके उसे घात करने आता है. right? He comes to steal our finances. वो हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है उसे चोरी करने आता है. So he comes to steal, kill and destroy. वो जो चोरी करने, हत्या करने और नाश करने आता है. So we need to be aware, हमें इस बात से जागरूक रहने की जरूरत and we है. need to be alert. हमें बहुत सचेत रहने की जरूरत है. And hey, you say this is the work of the enemy, I will not tolerate it. तो हमें कहना है कि शैतान का कार्य, शत्रु का कार्य है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा. Right? In the ministry of the Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई में the Lord went about doing good.
प्रभु यीशु जो है अच्छा करता हुआ फिरा। He did this by the anointing of the Holy Spirit. प्रभु यीशु ऐसा कर पाए पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा। What good did he do? उन्होंने कौन सा भले काम किए हैं? The Bible says that he brought about healing all those who were oppressed by the enemy. तो ये बाइबल बता रही कि वो जो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा जो सब जो शैतान के सताए हुए थे उन सबको छुड़ाए। Right? He was healing all who were oppressed by the enemy. जो शत्रु के द्वारा सताए हुए थे उन सबको चंगा किया उन्होंने। There was this one time the Lord Jesus went and spoke to or he was speaking, and they brought this person. एक बार यीशु मसीह जाकर बात कर रहे थे, एक व्यक्ति को उनके पास लाए। Now he could not hear, he could not speak. वो जो है सुन नहीं पा रहा था, बोल नहीं पा रहा था। So the Lord Jesus cast out a demon. तो प्रभु यीशु ने जो उस दुष्ट आत्मा को उसमें से निकाला। And after casting that demon out, that person could hear, that person could speak. और दुष्ट आत्मा उससे निकालने के बाद वो व्यक्ति जो है सुन पा रहा था और बोल पा रहा था। So what was happening there? वहाँ क्या हो रहा था? There was a demon that was causing that deafness and causing that mute. तो वहाँ एक दुष्ट आत्मा थी, उसको बहरा और गूंगा बनाकर रखा था। Another time, the Lord Jesus, he saw this woman who was bent over. और एक बार यीशु मसीह एक कुबड़ी स्त्री को देखते हैं। She could not straighten herself up. वो अपने आप को सीधा नहीं कर पाती थी। And the Bible says that he cast out the spirit of infirmity. बाइबल बताती है कि उसके अंदर जो दुर्बल करने वाले की जो आत्मा थी उसको यीशु मसीह ने उसके अंदर से निकाले। So there was a spirit which was causing that condition. तो वहाँ एक आत्मा थी, दुष्ट आत्मा थी जो उस प्रकार की स्थिति में उसको डाली थी। And when that was cast out, that person could straighten herself up. और उस दुष्ट आत्मा को निकाल दिया गया तो व्यक्ति जो है सीधा हो पाई। So we know that there could be certain sicknesses, certain conditions which are caused by evil spirits. हम जानते हैं कि कुछ ऐसे बीमारियां हैं, कुछ स्थितियां हैं जो शैतान के द्वारा दी जाती है। Right? So we know that, hey, that's a method of the enemy, so I'm going to resist it. तो हम तब जान पाते हैं कि ये शैतान का तरीका है, मैं जो इसका सामना करूंगा, इसका विरोध करूंगा। Okay. So what else do we see? और क्या देखते हैं हम? We see that the enemy can bring about a heaviness and oppression in our lives. तो हम देखते हैं कि शत्रु जो है हमारे जीवन में भारीपन या उदासी को लेकर आता है। What is this heaviness? ये भारीपन क्या है? You get up in the morning आप सुबह उठते हैं, and you're saying, आज mood नहीं है. आज कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है, I don't want to eat. मैं खाना नहीं चाहता हूँ, I don't want to go to class. मैं क्लास नहीं जाना चाहता हूँ, I just want to sleep. मैं केवल सोना चाहता हूँ, I don't feel like smiling. मैं मुस्कुराना भी नहीं चाहता हूँ, I don't feel like meeting anybody. मैं किसी से मिलना भी नहीं चाहता हूँ, I don't know why I'm sad, मैं नहीं जानता मैं क्यों दुखी हूँ। but there's a heaviness. एक उदासीपन या बाहरीपन। Sometimes this heaviness is caused by evil spirits. कभी कभी जो है ये बाहरीपन जो है दुष्ट आत्मा के द्वारा दी जाती है। They take away that joy. वो दुष्ट आत्मा जो हमारे अंदर की उस आनंद को निकाल देती है, They try to take away that peace उस शांति को निकालने की कोशिश करती है। and keep us oppressed. वो जो हमें जो है दबाव में रखना चाहती है। Because when you're oppressed, जब आप दबाव में रहते हैं या सताव में रहते हैं, you don't want to do the things of God. वो आप जो है परमेश्वर के कार्य को करना नहीं चाहते हैं। You don't want to read the Bible, you don't want to pray. आप बाइबल नहीं पढ़ना चाहते हैं, प्रार्थना नहीं करना चाहते You हैं। don't feel like sharing the gospel with anyone. आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि मुझे किसी से सुसमाचार सुनाना है। They're oppressed, heavy. आप बहुत ही भारीपन में, सताव में हैं। And that's what we read in Isaiah 61. वही हम यशायाह 61 में पढ़ते हैं। It talks about the Messiah coming in and changing things. ये इस बात को बताती है कि मसीहा आकर सारी चीजों को बदलने के बारे में। It says here that the Messiah, the Lord Jesus, he gives us the garment of praise in exchange for the spirit of heaviness. यहाँ वचन बता रहा है कि जो उदासी की हटाकर यश की ओढ़ना पहनाता है। Right? So there could be confusion, there could be depression in our lives, a sadness in our lives. हमारे जीवन में हो सकता है कि अवसाद है, भ्रम है, या तो हम दुखी है। And that could be caused by the enemy. ये शैतान के द्वारा ला सकता है। Right? And then we see certain situations in the life of Job. हम देखते हैं अय्यूब के जीवन में कुछ परिस्थितियों को। Job chapters 1 and 2. अय्यूब के पहला और दूसरा अध्याय में। Right? So we see that there was destruction into Job's family that was brought out by Satan. हम देखते हैं कि अय्यूब के परिवार में जो है एक ऐसा विनाश को लाया गया वो शैतान के द्वारा। You know, we need to be careful.
हमें सावधान रहने की जरूरत है। Satan brought the destruction. शैतान ने इस विनाश को अय्यूब के जीवन में लाया। There was a ball of fire that came and fell and burnt everything. Satan brought that. तो ये एक आग आई आकाश से और पूरा जला डाली, ये शैतान लाया इस चीज को। And there was a great wind that blew and knocked down the house and people inside were killed. Satan brought that. बड़ी एक हवा आई और घर गिरी और घर के अंदर के सारे लोग मर गए, ये शैतान का लाया हुआ। Right? And also in Job's life, there were painful boils over entire body that was brought out by Satan. और अय्यूब के शरीर में भी देख रहे हैं कि पूरा शरीर में जो उसके दर्दनाक फोड़े हो गए थे, जो शैतान ने उसके शरीर पर लाया। So what does this show us? ये हमें क्या दिखाती है? That Satan can do this in people's lives. कि शैतान जो है लोगों के जीवन में ऐसा कर सकता है। Okay? Or he could also bring some hindrances, some barriers in our lives. या तो शैतान जो है हमारे जीवन में जो है बाधाएं या रुकावट को ला सकता है। We want to do some good things. हम कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, We want to do ministry. हम सेवकाई करना चाहते We want to हैं, help people. हम लोगों की मदद करना चाहते हैं। The evil spirits can bring hindrance. तब जो है दुष्ट आत्माएं जो इसमें बाधा ला सकती है। Paul says that there was a messenger of Satan to trouble him. तो पौलुस बता रहा है कि ये शैतान का एक दूत था जो उसे परेशान कर रहा था। An agent of Satan to buffet him so that he should not be exalted above a certain measure. तो शैतान का दूत जो था उसे गुस्से मार रहा था ताकि पौलुस जो है खुद फूल ना जाए। So we should understand that it was a messenger of Satan who did it. तो हम यहाँ समझ पाते हैं कि शैतान का एक दूत ने ये कार्य को किया। And also Paul in another place when he's writing to the Thessalonians, he says, I wanted to come and meet with you, तो और एक जगह में पौलुस बता रहा है कि थिस्सलुनीके में मैं तुमसे आके मिलना चाह रहा था, but Satan hindered me. लेकिन शैतान मुझे रोक रखा। So what is he saying? He's saying, I wanted to come and minister, वो क्या पौलुस क्या बता रहे, मैं आके तुम्हारी सेवा करना चाह रहा था, but Satan stopped. लेकिन शैतान ने वहाँ परेशानी कोई बाधा को लाया। So Satan can do that. शैतान ऐसा कर सकता है। Now we were looking at all these bad things that the demons do, तो हम जो है शैतान जो ये बुरे कार्य करते हैं उसके बारे में हमने देखे। but we need to understand one thing. हमें एक बात को समझने की जरूरत है, While we might face these things, जब इस तरह के हम चीजों का सामना करते हुए, and we will face these things, हम इसका सामना करेंगे, but the good news is this, लेकिन खुशखबरी ये है, that the Lord has given us authority. लेकिन प्रभु ने जो है हमें अधिकार दिए हैं। What does authority mean? अधिकार का मतलब क्या होता है? Power and permission. जो हमारे सामर्थ और हमारे लिए अनुमति दी गई है, He has given us authority. उन्होंने हमें अधिकार दिया है। Authority over what? किस पर अधिकार दिए हैं? He has given us authority over all the power of the enemy. शैतान के सारे सामर्थ पर हमें अधिकार दिया है। If he's coming to steal, kill and destroy, हमने अभी देखे हैं कि जो चोर जो है चोरी करने, हत्या करने और नाश करने आता है। if he's coming to bring hindrance into our lives, हमने ये भी देखे कि वो हमारे जीवन में बाधा को लेकर आता है। if he's coming to bring a heaviness into our emotions, वो जो हमारे भावनाओं में बारीपन को लेकर आता है। or just like how in the life of Job, Satan brought about so many things, devastation, if he comes, over all his powers, the Lord has given us authority. जैसे अय्यूब के जीवन में हम देखें, उसके जीवन में शैतान ने जिस प्रकार की कठिनाइयों के लाया करके ये सारे आते हुए इन सारे बातों पर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। Look at the words of the Lord Jesus. प्रभु यीशु का वचन को देखें, Luke chapter 10 and verse 19. लूका 10वां अध्याय का 19वां वचन। He says, I give you the authority तो बता रहे हैं कि मैं तुम्हें अधिकार दिया हूँ to trample over serpents and scorpions. सांपों और बिच्छुओं को रौंदने के लिए। Okay. Now, what do serpents and scorpions represent in the Bible? ये सांप और बिच्छू जो है किस बात को संदर्भित करती है? He's not talking about physical scorpions or physical snakes. यीशु मसीह जो है ये शारीरिक तौर पे सांपों को या बिच्छुओं के बारे में नहीं बता रहे हैं। He's talking about the powers of the enemy. वो जो है शत्रु के Right. सामर्थ के बारे में बता So, if रहे you look हैं। at that verse, उस वचन को हम देखें, it says that I give you the authority to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy. तो वचन ऐसा बता रहा है कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। Like how in the natural, serpents and scorpions are dangerous for us. जैसे प्रकृति तरफ पे कैसे ये सांप और बिच्छू हमारे लिए खतरनाक है, They bring pain into us. They sometimes bring death also. कभी वो हमारे जब वो डस लेते हैं तो हमारा दर्द होता है या कभी मृत्यु भी हो जाती है।
In the same way, demons operate. इसी तरीके से जो है शैतान भी कार्य करता है। But the Lord Jesus says, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, over all the power of the enemy, शत्रु के सारे अधिकार पर I give you the power, I give you the permission. मैं तुम्हें अधिकार दिया हूँ, मैं तुम्हें अनुमति दिया हूँ। In other words, he's saying, I give you the authority. तो दूसरे शब्दों में कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अधिकार दिया Now, हूँ। authority to do what? क्या करने के अधिकार दिए उन्होंने? To stop the works. ये सारे कार्यों को रोकने के लिए। Right? And this is what the Lord Jesus said ये यीशु मसीह ने कहे when he was commissioning the disciples. जब अपने चेलों को वो आज्ञा दे रहे थे। Right? He says that in my name they will cast out demons. तो उन्होंने कहा कि मेरे नाम से वे जो है दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। Who was he talking about? किसके बारे में वो बता रहे थे? Of course, the disciples who were there. वास्तव में वहाँ उनके चेले जो थे वहाँ पर उनके साथ। Verse 17 says, these signs will follow those who believe. 17 वचन मरको 16 का 17 वचन ऐसा बता रहा है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। So the question is, do we believe? सवाल ये कि क्या हम विश्वास करते हैं? Are we believers? क्या हम विश्वासी हैं? That's the only qualification. यही एक चाहिए जरूरत जो है। If you are a believer, यदि आप विश्वासी हैं, if you believe in the Lord Jesus, यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते if हैं, you received him as Lord and Savior, आप उन्हें प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, the Lord Jesus gives you the permission and the power to cast out demons. और प्रभु यीशु जो है आपको अधिकार और अनुमति दिए दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए। Amen? आमीन। You might say, I became a believer only yesterday. आप ऐसा कह सकते हैं कि कल ही मैं विश्वासी बना हूँ, Or you might say, I've been a believer for many years. या तो आप कह सकते हैं कि मैं कई सालों से विश्वासी हूँ। If you are a believer, यदि आप विश्वासी हैं, the Lord gives you permission. प्रभु यीशु आपको अनुमति देते हैं। If you are a believer, यदि आप विश्वासी the हैं, Lord gives you power प्रभु आपको सामर्थ देते हैं and he gives you the authority to cast out demons. और वो जो है दुष्ट आत्माओं को निकालने की अधिकार देते हैं। The Lord says, in my name they will cast out. यीशु मसीह बता रहे हैं कि मेरे नाम से वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। What does it mean, in my name? मेरे नाम से इसका मतलब क्या है? It means that he has given us authority to use his name. इसका मतलब जो है उन्होंने अपना नाम को इस्तेमाल करने का अधिकार हमें दिए हैं। There's power in the name of Jesus. जैसे उसमें जो है यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है। Yes or no? हाँ या नहीं? Yes, there's power in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है। The word of God says that at the name of Jesus, every knee will bow and every tongue confess that he is Lord. परमेश्वर का वचन बताते हैं कि यीशु मसीह के नाम पे हर एक जीभ अंगीकार करेगी, हर एक घुटना टिकेगी। Then I remember one time when we went to pray for someone, मुझे याद है कि किसी एक के लिए हम एक बार प्रार्थना करने गए थे। and this person was heavily tormented, ये व्यक्ति जो है बहुत ही यातना में था। and we started singing. हम गाना गाना शुरू We किए। were just worshiping the Lord. हम परमेश्वर की आराधना कर रहे And when we थे। started declaring तो जब हम घोषणा करने लगे, that, we sang the song, He is Lord, He is Lord, जैसे में इस गाना को गाएं कि वो प्रभु है, वो प्रभु है, and Jesus is risen from the dead and He is Lord. और यीशु मसीह मृतकों में से उठा और वो प्रभु है। So when we declare the name of Jesus, जब यीशु मसीह का नाम का हम घोषणा कर रहे and थे, when we declare the truth that He is risen from the dead, जब हम इस सच्चाई का घोषणा कर रहे थे कि वो मृतकों में से जी उठा, the evil spirit started manifesting. तो उस दुष्ट आत्मा जो है प्रकट करने लगी। The evil spirits cannot be quiet in the name of Jesus. दुष्ट आत्माएं जो यीशु मसीह के नाम सुनकर चुप नहीं रहेंगे। So we can declare the name of Jesus. इसलिए हम जो यीशु मसीह का नाम को घोषणा कर सकते हैं। There's power in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है, But also, He has given us authority. और साथ ही जो है यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिए हैं। So which means to use His name means that the authority that He has given us to be His representative. तो यीशु मसीह जो अधिकार दिए उनके नाम का, इसका मतलब जो हमें जो उनका यीशु मसीह का प्रतिनिधि बनने के लिए। All of us, when we are studying, I know we had class representative. हम सब पढ़े हैं तो हमें पता है कि हमारी कक्षा का जो प्रतिनिधि होते हैं, They are representing the class. हम जो क्लास का प्रतिनिधित्व करते हैं। Right? In the same way, we represent Jesus. इसी प्रकार से हम जो है यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व करते So हैं। if Jesus was there physically, यदि शारीरिक रूप में यीशु वहाँ होता, what would He do? वो क्या करता? We would do the same thing. वो जो करता था वही चीज को हम करेंगे। So the Lord is looking to us to do what He would do in His place, in His name,
in that situation. तो यीशु मसीह जो है हमारी ओर देख रहे हैं, वो जो करेंगे, जो रहते हुए करेंगे, उस चीज को हम उनके नाम से करें। Amen? आमीन। So, what are we talking about? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? All these situations where the powers of darkness are creating havoc or damage. जहाँ ये सारी परिस्थितियों में, या जहाँ दुष्ट आत्माएं पूरा परेशानी को या विनाश को लेकर आती है। Maybe in your own life, हो सकता है कि आपके खुद के जीवन में you wake up in the morning आप सुबह उठते हैं, and you're scared. आप डर रहे हैं, Thoughts are going on in your mind, आपके दिमाग में विचारें चल रही है, hopeless thoughts. आशाहीन विचारें। Oh, what will happen to me? तो मुझे क्या होगा, What will happen to my life? मेरे जीवन का क्या होगा? Thoughts of despair. तो वो निराशा की विचारें। Or sometimes, for no reason, there seems to be a lot of arguments and fights and strife in the family. या तो बिना कारण ही परिवार में जो है बहस, लड़ाई और अशांति The enemy stirring up things. चीजों को बढ़ा रही है। What would you do? आप क्या करेंगे? What would the Lord want us to do? परमेश्वर क्या हम करें चाहेंगे? He would want us to be His representative in that situation, परमेश्वर जो है हमें उस परिस्थिति में प्रतिनिधि होने के लिए चाहेंगे। to use His authority and power, उनका अधिकार और सामर्थ्य को इस्तेमाल करें। to do what He would do in that place. उस जगह में वो जो करेंगे रहने से उसको हमें करने के लिए कहा है। And that is what it means. यही इसका मतलब है। He says they will cast out demons. तो करें कि वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। And which is why He's given us power, इसी के लिए उन्होंने सामर्थ दिए हैं that we would have power over all the works of the enemy. ताकि हम जो है शत्रु के सारे सामर्थ पर अधिकार पाएं। And this power and authority was not only for the disciples, but for all of us. ये सामर्थ और अधिकार केवल चेलों के लिए नहीं है, हम सभी के लिए है। Sometimes we might think, okay, how can I have this authority? कभी-कभी हम ऐसा सोचेंगे कि कैसे मेरे पास ये अधिकार हो सकता है, No, but it is for us. लेकिन ये हमारे लिए है। Because the Lord Jesus is saying that. यीशु मसीह खुद इसे कह रहे हैं। He's giving us authority because we have been taken out of darkness, the kingdom of darkness, into light. उन्होंने अधिकार ये दिए कि यीशु मसीह खुद जो है हमें अंधकार के राज्य में से उठाकर ज्योति के राज्य में प्रवेश कराए हैं। He's given us authority because you and I are sons and daughters. उन्होंने ये अधिकार इसलिए दिए क्योंकि आप और मैं उनके बेटा और बेटी हैं। We are in the family of God. आप परमेश्वर के परिवार में हैं। He's our heavenly Father. वो हमारा स्वर्गीय पिता है। And so He has given us that authority. इसलिए उन्होंने यीशु मसीह ने हमें ये अधिकार दिए हैं। And also, He has given us this delegated authority, or has given us the permission and the power. और साथ ही साथ यीशु मसीह जो हमें सौंपा गया अधिकार या दिया गया अधिकार हमें दिए हैं। And He has given us authority by the infilling, by the empowering of the Holy Spirit. उन्होंने ये अधिकार जो है हमें पवित्र आत्मा हमारे अंदर भरकर पवित्र आत्मा के द्वारा वो सामर्थ्य को दिए हैं। So, what do? तो हम क्या करते हैं? There are three things that we can do. हम तीन चीजें कर सकते हैं। Firstly, we have to resist the work of the enemy. सबसे पहले जो है हमें शत्रु के जो कार्य का विरोध करना है, We have to push back. हमें उसे पीछे धक्का देना है। We need to do it. हमें करना है उसे, Because the Lord Jesus said, they will cast out. क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। Like He will not cast out. यीशु मसीह खुद उसे निकालेंगे नहीं। Yes, it is His power. हाँ, उनकी सामर्थ्य है। Yes, it is His name. हाँ, उनका नाम है। But you and I have a role. लेकिन आपका और मेरा एक भूमिका है। We have to take responsibility. हमें उस जिम्मेदारी को लेना है। We have to rise up in authority. हमें अधिकार पर उठना है। And we have to cast out. हमें जो है उन दुष्ट आत्माओं को निकालना है। We have to resist. हमें उसका विरोध करना है। The Bible says in James chapter 4 and verse 7, बाइबल याकूब 4 अध्याय के 7वें वचन में बताता है, submit to God परमेश्वर का अधीन हो जाओ and what is the second part? Resist the devil. शैतान का सामना करो। Submission is one part. अधीन करना एक भाग है। We have to submit to God. हमें परमेश्वर का अधीन होना है। With that submission and obedience comes authority. उस अधीनता और आज्ञाकारिता के कारण जो है ये अधिकार मिलती है। It says, resist the devil. तो बता रहे हैं कि शैतान का विरोध करो। Someone ask us this question. तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, What are some things that you think the enemy is doing in your life? कौन से ऐसे चीजें हैं आपको लगता है कि शैतान आपके जीवन में कर रहा है? Is it some symptom in your body? क्या आपके शरीर में कोई लक्षण, Some heaviness in your mind? आपके मन में कोई भारीपन,
some strife in your relationships? आपके रिश्तों में कोई लड़ाई? Is there some stealing and killing and destroying that's happening? क्या कुछ चोरी, हत्या और नाश हो रहा है? Is there some hindrance in your journey of faith? आपके विश्वास के मार्ग में कोई बाधा है या You know, रुकावट है? you're finding it difficult to read the word of God and pray and spend time in worship? या तो बाइबल पढ़ने में या वचन प्रार्थना में समय बिताने में, आराधना करने में कोई आप कठिनाई महसूस कर रहे हैं? What do you need to do? आपको क्या करना है? We need to resist. हमें जो उसका विरोध करना है, Resist the work of the enemy. शत्रु के काम का विरोध कीजिए। And so, how do we resist? हम कैसे विरोध करें? Well, we speak words of resistance. हम जो है विरोध के शब्दों को बोलेंगे। We release commands of resistance. हम जो है विरोध करने की आज्ञाओं को आजाद करेंगे। We're not going to release petitions of resistance. हम ऐसे निवेदन का साथ या विनती को नहीं देंगे। What is a petition? विनती क्या है? Please, sir, can you please leave? कृपया कृपया आप करेंगे क्या? इस प्रकार से हम दया, बहुत ही नम्रता से मांगना। Please, I'm coming and I'm requesting you, please leave. कृपया मैं आता हूँ, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कृपया मुझे दे दीजिए। Please stop troubling me like this. कृपया मुझे परेशान करना बंद कीजिए। That is a petition, request. वो जो है विनती करना या निवेदन करना। But we're not called to do that. हम ये करने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। We are called to resist, command that thing to leave. हम जो है उसका विरोध करने और उस चीज को निकल जाने की आज्ञा देने के लिए बुलाए गए हैं। What did the Lord Jesus do? प्रभु यीशु ने क्या किए? He just commanded that thing to leave. और यीशु मसीह उन चीजों को निकल जाने की आज्ञा दिए। He issued a command. उन्होंने एक आज्ञा दिए। So that is not the time for request. वो right? जो है निवेदन करने की या तो विनती करने की समय नहीं है। The second thing we see in scripture is to bind, दूसरी बात हम देखते हैं वचन में जो बांधने के बारे में, which means to prevent or forbid. जिसके मतलब जो है रोकना या बचाना। And we see this in Matthew chapter 16 हम इसको जो है मत्ती 16वें अध्याय में देखते हैं, and verses 16 to 19. 16 से लेकर 19 तक के वचन We're में। not going to read through the whole verse, but then the Lord says, I give you the keys of the kingdom, प्रभु कहते हैं कि मैं जो है राज्य का कुंजियां दूंगा, and whatever you bind और जो कुछ भी तू बांधेगा will be bound in heaven. वो स्वर्ग में बंधेगा। In other words, he's saying heaven is going to bind whatever you command to bind. दूसरे शब्दों में जो कुछ भी बंध जाने के लिए आप आज्ञा देते हो वो जो है स्वर्ग में बंधेगा। So this is something that you do in prevention, ये जो है कुछ ऐसे काम है जो आप रोकने के लिए, बचाने के लिए कर रहे हो, right? Before anything happens, कुछ होने से पहले, or even if something is happening, और तब भी कुछ हो रहा हो and you're saying, I prevent this, I stop this from happening. तो आप ऐसे कहेंगे कि इसको होने से मैं रोक रहा हूँ। Again, the question, who needs to do this? तो फिर ये सवाल, किसे इसे करना चाहिए? किसको ये करना चाहिए? You and I. आप और मैं, We need to do it. हमें इसे करने की जरूरत है। And so we need to prevent and bind and say, Satan, you have no authority. I cancel your assignment in the name of Jesus. तो हाँ, आपको और मुझे ये कहना है कि शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं है, मैं तेरा सारे योजनाओं को मैं रद्द करता हूँ, मैं इसे बांधता हूँ। And of course, the third thing we see is to cast out. और तीसरी चीज जो है निकालना। We are saying, Satan, you have no right. हम कह रहे हैं कि शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं है। Maybe out of ignorance we gave place for the enemy. हो सकता है कि हमारे अज्ञानता के कारण हमने शत्रु को जो है जगह दे दी। You know, in our house, we sometimes people keep the gate open in our apartment. कभी-कभी जो है हमारे घर में जो अपार्टमेंट में लोग जो है गेट खुला छोड़ देते हैं। And so one day I noticed that one dog had come and he's there. तो एक दिन मैंने देखा कि कुत्ता वहाँ आकर अंदर रह रहा है। And so initially we tried chasing it off. It would go. शुरुआत में जो है हम उसे भगाने लगे, वो चला जाता था। And then somebody was actually feeding it, I think. तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि कोई तो भी उसको खिला रहे थे। So every time the gate was open, it will come inside. तो हर एक बार जब भी वो गेट खुला रहता था वो अंदर आ जाता था। And now it's become very bold. अभी जो बहुत ही साहसी हो गया। Earlier I used to lift my hand, it will run away. पहले जो मैं अपना हाथ उठाता तो भाग जाता था। Now when I lift my hand, अभी जब मैं अपना हाथ उठाता हूँ, it wags its tail वो अपना पूंछ हिलाता and is just lying down there. बस वहाँ लेट जाता। And this morning when I came, आज सुबह जब मैं आ रहा था he just looked at me like that वो मेरी ओर ऐसा देख रहा था and went back to sleep. और सो गया। He's become very bold. और बहुत ही हिम्मती हो गया। So I don't know what we're going to do now.
मुझे नहीं पता कि हम क्या करने जा रहे हैं। But the fact is, sometimes the enemy is like that. तथ्य है कि कभी-कभी जो है शत्रु भी इस प्रकार का होता है। We have given him an inch, he has taken a foot. हम कभी का 1 इंच की जगह दे देते हैं, वो पूरा जगह ले लेता है। And we are tolerating the enemy. हम जो है शत्रु का बर्दाश्त कर ले रहे हैं। We're saying, okay, it is fine. Let it be there. तो हम ऐसा लगता है ठीक है, रहने दो उसको। Oh, this problem is there. I think everybody is having it. I will also go through it. तो ये समस्या है, मुझे लग रहा है कि सभी का ये समस्या है, मैं भी इससे मुझे भी जाना है। You know, every morning I get up with some fear and all these fearful thoughts. It's okay. I think the whole world has it. I will also go through it. तो हर एक सुबह मैं डर और डर के विचार के साथ उठता हूँ, तो फिर मुझे लगता है ठीक है, पूरा संसार तो इसी विचार से चल रही है। So we tolerate the work of the enemy. हम जो है शत्रु का काम को बर्दाश्त कर ले You रहे know, there's हैं। so much of strife and there's so much of quarreling and fighting and arguments. It's okay. I think every family it's like that only. तो घर पर पूरी लड़ाई, वाद विवाद, बहस, सारी बातें हो रही, तो ठीक है, सारे परिवार में होता है। What does the Lord say? लेकिन प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? You resist. आप उसका विरोध करें, You forbid. You prevent. आप उसको रोकें, बचाएं, And you cast out. आप निकालें, Because He's given us the authority. क्योंकि उन्होंने वो अधिकार हमें दिए हैं। So we need to be sure, first of all. सबसे पहले तो हमें इससे पक्का होने की जरूरत है। So that's why Paul writes, I don't want you to be ignorant. इसलिए पौलुस लिख रहा है कि तुम अनजान ना रहो। He has given us the authority. प्रभु ने हमें अधिकार दिया है, He has given us the permission उन्होंने हमें अनुमति दी है, to command these things to leave. तो इन सारे चीजों को निकल जाने की आज्ञा देने के लिए। Amen? आमीन। And so even as we pray right now, जैसे अभी हम प्रार्थना कर रहे हैं, we need to understand that hey, He has given us that invitation to do this. तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि प्रभु ने जो है हमें निमंत्रण दिया ये करने के लिए। So let's not tolerate the work of the enemy. हम जो शत्रु के काम को बर्दाश्त करते ना रहें, Let's not submit to the works of the enemy, हम जो शैतान के कार्य है उसका अधीन ना हो, but let's resist the work of the enemy तो शत्रु के जो कार्य है उसका विरोध करें, and cast out him and all the powers of darkness from our lives. तो उसको और उसके सारे सामर्थ को हमारे जीवन से निकाल Right? फेंकें। And we can do the same thing for others also, in our families and others whom the Lord will take us to minister. ये काम हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और परिवार जिसके पास परमेश्वर हमें लेके जाते हैं सेवकाई के लिए, उनके लिए भी हम कर सकते हैं। Amen? So today, as we take part in the Lord's table, आज जब हम प्रभु भोज में भाग लेने जा रहे हैं, we are going to just declare this victory of the Lord Jesus. तो हम जो है प्रभु यीशु के इस विजय को घोषणा करेंगे। So if you brought the communion elements when you walked in, I just want to request you to hold it in your hands. Otherwise, maybe you can raise your hands and our ushers will bring the communion elements to you. Can you put your यदि आप आते hands हुए up? आपके लाए हो तो ठीक है, अगर नहीं भी लाए तो आप अपना हाथ उठा लीजिए, तो आपके पास लाके दिया जाएगा। Okay, I can see some people here and there. Yeah. If you can take the communion elements to them, please. Yeah. Okay, and those of you who are watching online, you can have a wafer or a juice or even bread and water. And these are symbolic things that we are holding in our hands. तो ऑनलाइन के माध्यम से जो हमारे साथ जुड़े हैं, वो अब भी जो है ब्रेड या वेफर, जूस या पानी भी, ये तो केवल एक सामग्री है। Right? So there's nothing magical about this. इसमें कोई जादू की बात नहीं है, But there's great spiritual significance. ये इसमें लेकिन जो है बड़ी अलौकिक आत्मिक चीजें हैं। Right? So if you are a believer, a follower of the Lord Jesus, then you're welcome to take part. यदि आप विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी है, तो आप जो है इसमें भाग होने के लिए आपका स्वागत है। The wafer that we hold in our hands, जो रोटी हम हाथ में ले रहे हैं, it is symbolic of the body of the Lord Jesus that was nailed for us on the cross. ये प्रभु यीशु मसीह का शरीर जो क्रूस पर जड़ा गया, वो उसका प्रतीक है। It was not just the physical body that was nailed, ये नहीं, केवल ये नहीं कि यीशु मसीह की शारीरिक शरीरी किले में but He carried our sin, He carried our sickness and every curse. उन्होंने हमारी बीमारी को, हमारी शापों को, हमारी सारी अधर्म को उन्होंने उठाया। He took what was separating us from God upon Himself on the cross. जो चीज हमें और परमेश्वर को अलग कर रही थी, उसे जो है प्रभु यीशु ने खुद अपने ऊपर ले लिए। The cup that we hold in our hands जो कटोरा हम अपने हाथ में पकड़े हैं, and what we are drinking out of, जिसमें से हम पीने जा रहे हैं, that it is symbolic of His precious blood that was shed for each one of us. ये उनका बहुमूल्य लहू का प्रतीक है जो हमारे लिए उन्होंने बहाया। So it points to that great sacrifice on the cross. ये जो है वो महान बलिदान जो यीशु मसीह ने क्रूस पर
किए थे And उसको दिखाती है। and like we sang this just a little while ago, every curse is cancelled. जैसे थोड़ी देर पहले हम गाए थे, हर एक श्राप जो है रद्द किया गया है, Every sickness is cancelled. हर एक बीमारी चंगा हो गई है। Not because of what we do, ये इसलिए नहीं कि हम जो कर रहे हैं इसलिए, but because of what He has done for us. ये इसलिए कि यीशु मसीह ने जो किया है उसके कारण। And the finished work of Jesus on the cross also talks about the authority that He's given us. यीशु मसीह ने क्रूस पर जो कार्य पूरा किए हैं, वो जो है जो अधिकार हमें दिए हैं उसके बारे में भी And बात so करता as we है। take part in the communion, इसलिए जैसे हम प्रभु भोज में भाग लेते we हैं, are declaring Jesus is Lord. तो हम जो है यीशु मसीह ही प्रभु है इस बात की घोषणा कर रहे We हैं। are also declaring a defeat over the works of the enemy. हम इस बात की भी घोषणा कर रहे हैं कि शत्रु के कार्य पर जो हार गया है उस बात की घोषणा करते हैं। We are acknowledging that Jesus has given us the power of over all the works of the enemy. हम इस बात को मानते हैं कि यीशु मसीह ने जो है शत्रु के सारे कार्य पर हमें अधिकार दिया है। And so I want to encourage us to use our authority. तो इसलिए हम सब प्रत्येक को प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि हम अपने अधिकार को इस्तेमाल करें। Okay, the Lord Jesus, the night He was betrayed, He took the bread, और जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया उस दिन वो रोटी ली, He blessed it and He gave it to His disciples. उसे आशीष दिए और अपने चेलों को दिए And He said, take, eat, this is my body which is given for you. और उन्होंने कहा लो खाओ ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया गया। Let's partake of the bread knowing and understanding that He took our sin upon Himself on the cross. आइए इसमें हम ये जानते हुए कि वो हमारे पापों को लिए और हमारे लिए हमारी इस बात को जानते हुए इसमें हम भाग लें। The Bible says that after supper He took the cup, He blessed it, and He gave it to His disciples, saying, drink ye all of this, for this is my blood in the new covenant which is shed for you for the remission of sin. इसके बाद उन्होंने कटोरा लिया और अपने चेलों को देकर कहा इसमें से तुम पियो, ये मेरा वाचा का नई वाचा का लहू है जो सारे सभी के लिए पापों की क्षमा के लिए बहाई गई है। So let's drink from the cup, knowing fully well that all our sin and sickness and shame He has cleansed it by His precious blood. आइए जानते हुए कि हमारे बीमारियों को, हमारे पापों को, हमारे लज्जा को उन्होंने पूरी तरह से निकाल डाला है, शुद्ध कर दिया, ये जानकर इसमें भाग लें। Let's give thanks in Jesus' name. आइए यीशु मसीह के नाम में हम धन्यवाद दें। And begin to use your authority, issue those commands. आइए अपने अधिकार को इस्तेमाल करना शुरू करें और उन आज्ञाओं को देने लगें। Just open your mouths and say, Lord, I thank you. अपने मुंह खोलकर कहें प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता I हूँ, thank you for the authority that you've given me. जो अधिकार आपने मुझे दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। And just say, Satan, you have no right over my life. और ये कहते हुए कि शैतान मेरे जीवन पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। All assignment that you come and bring, I cancel it in the name of Jesus. हर एक काम जो तो आकर करता है वो सब यीशु मसीह के नाम से मैं उसे रद्द करता हूँ। Every arrow of discouragement and accusation, I cancel it in Jesus' name. हर एक निराशा और दोष लगाने वाली जो तीर है वो सब यीशु मसीह के नाम से मैं रद्द करता हूँ। Every attempt to steal, kill, and destroy the things in my life, I cancel it and resist it in the name of Jesus. मेरे जीवन की कोई भी चीज चोरी करने, हत्या करने और नाश करने की जो कोशिश है ये सब यीशु मसीह के नाम से मैं रद्द करता हूँ। And I take authority in the name of Jesus and I bind every work in Jesus' name. और मैं यीशु मसीह का नाम का अधिकार को लेता हूँ और शत्रु के हर एक काम को मैं बांधता हूँ। And I take authority and I cast out the work of the enemy in the name of Jesus. और मैं यीशु मसीह के नाम का अधिकार लेकर सारे दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ। So maybe there are something specific in your life, just speak it out in Jesus' name. हो सकता है कि आपके जीवन में कोई विशेष बात हो उसे आप बोलें। You know, is it some kind of sickness? या वो एक बीमारी है, Is it some kind of lack? या कमी है, Is it some kind of oppression that you're feeling? या तो कुछ ऐसा आप महसूस कर रहे हैं, किसी प्रकार का सताव या दबाव। Just say, in Jesus' name. केवल कहें यीशु मसीह के नाम में। Maybe it's a spirit of lust. या हो सकता है कि वासना की आत्मा, Maybe it is a spirit of infirmity. या तो दुर्बलता की आत्मा। Just say, you spirit of infirmity, you have to leave. तो आप ऐसे कहें कि दुर्बलता की आत्मा तुझे निकलना होगा। You spirit of uncleanness, you have to leave. अशुद्धता की आत्मा तुझे निकलना होगा। You spirit of confusion and strife, you have to leave in Jesus' name. ब्रह्म और लड़ाई को लाने वाली आत्मा तुझे यीशु मसीह के नाम से निकलना है। I speak the peace of Jesus. यीशु मसीह की शांति को मैं बोलता हूँ। I release the power and the kingdom of God
मैं परमेश्वर के राज्य के सामर्थ को आजाद करता हूँ over my life. मेरे जीवन पर। We thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, We thank you, Master. धन्यवाद प्रभु। Yeah, let's just thank the Lord for some time. Open our mouths and let's thank Him. आइए हम कुछ समय के लिए अपने मुंह को खोलें और प्रभु को धन्यवाद करते We रहें। thank you for your word, Lord. आपके वचन के लिए हम आपका We धन्यवाद thank करते you हैं for the प्रभु। work of your Spirit, O God. आपके आत्मा के कार्य के लिए हम आपको Yes, धन्यवाद Lord, देते we हैं। open up our lives for more work of your Spirit. प्रभु जी, हम अपने जीवन को खोलते हैं प्रभु आपके आत्मा के कार्य के लिए। And we close the doors to the enemy. हम जो है शत्रु के लिए दरवाजा को बंद कर देते हैं, Whatever doors were opened, we claim it closed in Jesus' name. और जो भी दरवाजा खुले हैं प्रभु हम उसका दावा करते हैं यीशु मसीह के नाम से वो बंद कर Yeah, we दें। repent of all those open doors, God. और सारे वो खुले दरवाजे रह गए उन सब के लिए हम पश्चाताप कर रहे हैं We thank you for the cleansing. और शुद्धिकरण के लिए हम आपका धन्यवाद We देते हैं। thank you for the aligning and the restoration. और जो संग्रहित लाने के लिए और पुनः उसके बनाने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। Have your way in our lives, Lord. आपकी इच्छा हमारे जीवन में हो Enable प्रभु। us to walk in victory and in freedom. हमें सामत बने प्रभु, हम जो है विजयी और आजाद में चले। Let every stronghold be broken in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में हर एक गढ़ टूटे। Yes, Lord, release us into the freedom that you have bought for us, Lord. हाँ प्रभु, जिस स्वतंत्र को अपने लाया प्रभु उसमें हमें आजाद कीजिए प्रभु। We give you all the praise and glory. हम सारी स्तुति और महिमा आपको देते हैं। In Jesus' matchless name we pray. यीशु के अतुल्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Now may the grace of our Lord Jesus Christ, अभी हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, the love of God the Father, पिता परमेश्वर का प्रेम and the communion, the fellowship of the Holy Spirit be with us always. और पवित्र आत्मा का संगति हमेशा हमारे साथ रहें। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।